about first phase, that is the lexical analysis. And as you know that it is the very first phase of the compiler, and whatever you have written the program, it just as it is gone to the first phase, that is the lexical analysis. Okay. So in today's lecture I will discuss about lexical analysis phase, about lexical analyzer and its role, what are the tokens, what are the lexeme, what are the patterns. Next I will discuss input buffering technique, then I will discuss advantage and disadvantage of this phase, and then I will discuss some examples. So starting from the lexical analysis, as you know that this is the very first phase of the compiler. Okay, and what it does, it scan the program, it scan the whole program, whatever you have written using any particular language, whether it is a C, whether it is a Java, it is a Visual Basic, and so on. Okay, so it reads whole the program. Okay, so how it reads, it reads the source code, and or you can say whatever the program you have written using the language processor. Language processor, just its name shows that the processor which works on any language. Okay. Actually, student, don't give your attendance right now. When I will say, then you will you have to give the attendance. Okay. So so not only reading your actual code, it also read whatever the preprocessor you have used. Okay. So it uses the language processor as well as the preprocessor. Just like I have told you that what are the preprocessor? There are two parts in the program. First one is the preprocessor, and the second one is the area where you write your own program, your own concept using any language. So you will find that in somehow in every language preprocessor is used. Okay. स्टूडेंट किसी का माइक ऑन है वो जरा बंद कर लेना, ठीक है. So preprocessor means whatever you are writing, like hash include, hash define, and such type of things is called preprocessor. So it reads the preprocessor as well as the program, whatever you have written in any form. What is this? It converts the whole source program into a sequence of characters, and these sequence of characters are differentiable with each other. Means you can distinguish all sequence of character easily. Just like that, you have written int a comma b comma c. It means that there is a sequence of character int a comma b c and such type of thing. Okay. So these are the sequence of character, and you can easily identify. It means that there are keywords, there are operators, there are uh, punctuations. Okay, there are constant, and so many things are there. It depends upon the patterns. Okay. So what it do? It reads the whole program and converts into sequence of characters, and these sequence of characters are into the form of atomic unit. Atomic unit means that each sequence of character can be differentiated with each other. Okay. Next, what is the work of lexical analysis? It produces lexical error. Mainly these errors are the errors generally you have done through spelling mistakes. Okay. Writing you have to write while, and you instead of writing while, you have written
WHL, or instead of writing INT, you have just written INT. Okay, so there are these type of error generally comes due to the spelling mistakes. Okay, student, please don't give your attendance right now. Whenever I will say, then you give your attendance. Okay, don't disturb. And the lexical analysis is done by lexical analyzer tool. Earlier I have told you that there are various pages in the compiler, and each pages are done by some tools. Okay, so lexical analysis is done by lexical analyzer tool, or you can say that it's a lexer. Okay, simply it is called lexer. Now come to the lexical analyzer. As you know that lexical analyzer deals with lexical analysis phase. It performs lexical analysis, and the tools used for lexical analysis is called lexical analyzer, or called lexer. It also contains tokenizer or scanner. You can say that tokenizer means the tools which converts source program into the token. Okay, and the scanner, what it does, it scans the program. What lexical analyzer do? It lexical analyzer breaks the source program into sequence of characters which have some meaning, and these sequence of characters are called token. Okay, so I will discuss in detail about the token. So basic purpose of lexical analyzer is to convert the source program into the token. Okay, and apart from generating tokens, if it he finds that it is an invalid token, means you have generated a token but it does not have any meaning, it will give error. Just for example, you have written for you have to write for I is equal to 0, I less than 20. And instead of writing for, you have just written FO. Okay, so it will generate the sequence of character FO. Okay, but whether it is valid or not, it will check. Each sequence of character is checked using some pattern, whether it is belonging to identifier, whether it is belonging to operator, whether it is belonging to keywords or punctuation, and so on. So here FO does not belong to any category. Why? Because FO, it may be a identifier. ओके, आप वेरिएबल एज ए वेरिएबल एफओ यूज कर सकते हो, लेकिन क्या होगा अगर आप वेरिएबल यूज करोगे, इट मींस दैट इट मस्ट हैव सम डाटा टाइप. ओके, एंड हियर you don't have defined data type of fo, so it means it will considered as a keyword, but fo is not matched with the words stored in a particular language. ओके, जितने कीवर्ड्स हैं ये प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं, एंड दैट आर स्टोर्ड इन द कंपाइलर, सो इट विल बी मैच्ड. वहां पे क्या होगा, ये मैच नहीं होगा, इट मींस दैट इट इज एन इनवैलिड टोकन. ओके, सो what it will do, it generates an error. It will go note down the line number and it will give the error. Apart from generating the tokens and generating the errors, it also removes white spaces and comments. तो एक प्रोग्राम के अंदर आप जितने भी कमेंट्स लिखते हो, आप लिखते हो ना स्लैश हैश, जैसे सी की बात करें स्लैश हैश या डबल स्लैश में आप लिखते हो, कोई भी कमेंट लिखते हो, दिस इज फॉर एडिशन एंड वॉट एवर एनी टाइप ऑफ कमेंट्स यूज्ड, ओके, इज रिमूव्ड. ओके, तो जितने भी कमेंट होते हैं दैट ऑल आर रिमूव्ड बाय लेक्सिकल एनालाइजर. And white spaces, means that blank, okay, whatever blank you have used,
ओके एंड बहुत सारी चीजें आप यूज करते हो जैसे /t/n/b and such type of thing. These are called white spaces, and these white spaces and comments are removed by lexical analyzer. Okay, so आई थिंक लेक्सिकल एनालाइजर का वर्क जो है क्लियर हो गया होगा बिल्कुल. लेक्सिकल एनालाइजर इज यूज फॉर लेक्सिकल एनालिसिस पेज. इट हैव टू थिंग्स, टोकनाइजर एंड स्कैनर. ओके, टोकनाइजर यूज फॉर generating tokens. Okay, and scanner used for scanning the program or reading the program. What lexical analyzer do? It break the source program into sequence of character having some meaning called token. If the token is valid, then okay, otherwise it will pass to the next phase. Otherwise, what will happen? It will produce some error. Okay, and it also removes the white spaces and comments used in a program. Now come to detail into the lexical analyzer. This is the you are saying this is the block diagram of lexical analyzer. So here you are saying lexical analyzer gets the source program, generates the token, and gives to the parser. Okay, parser receives the tokens from lexical analyzer and it asks for the next token. Okay, तो होता क्या है कि जैसे ही प्रोग्राम रीड होता है पहला टोकन आया एंड दैट फर्स्ट टोकन विल बी सेंड टू द पार्सर एंड पार्सर अगेन आस्क्स फॉर द टोकन एंड दिस एक्टिविटीज गोज ऑन until all the program is read out by the lexical analyzer. जब तक सारे प्रोग्राम पूरा रीड नहीं हो जाएगा या सारे टोकन जनरेट नहीं हो जाते हैं, ठीक, वो क्या होगा, तब तक पार्सर क्या लेक्सिकल एनालाइजर टोकन प्रोड्यूस करता रहेगा, सेंड करता रहेगा पार्सर को, पार्सर मांगता रहेगा टोकन. ओके, और क्या करेगा लेक्सिकल एनालाइजर, क्या करता है, हमने आपको बताया था कि जो सिंबल टेबल होता है वो सारे पेजेस के साथ लिंक होता है, दैट वर्क्स पैरेलली विद ईच पेजेस. तो इन लेक्सिकल एनालाइजर वट एवर द symbols or whatever the information that will be used at the time of execution that must store into the symbol table. तो जितनी भी इंफॉर्मेशन यूज की जाएंगी किस टाइम पे, एग्जीक्यूशन टाइम पे, वो सारी की सारी क्या होंगी, सिंबल टेबल में स्टोर करेंगे. ठीक, क्लियर है. और साथ में मतलब सिंबल टेबल के नीचे हमने कंपाइलेशन एरर भी लिख रखा है. मतलब ये क्या होगा, ये सिंबल टेबल के साथ नहीं है, इट इज सम अदर प्लेस, दैट इज द एरर हैंडलर. तो वहां पे अगर इफ देयर इज एन एरर तो वो एरर स्टोर कराइए. तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर. ओके, रीड द सोर्स प्रोग्राम, generate the token, sends that token into the parser asks for token, lexical analyzer reads the source program, and this cycle goes on until all tokens is generated. If there is a important token which is to be जो रन टाइम पे यूज किए जाएंगे एग्जीक्यूशन टाइम पे, that must store in the symbol table. If there is an invalid token, it must store to the error handler and generates compilation. Okay, now what तो इसमें हमने जो लिखा है that is all I have described. Lexical analyzer identifies the first token, it will send to it the parser receives the token and calls the lexical to send next token by issuing the get next token command. This process continue until the lexical analyzer identifies all the tokens. जब सारे टोकन जनरेट हो जाएंगे पार्सर लेक्सिकल एनालाइजर पे स्टॉप हो जाएगा. ठीक, now come to the detail into the token lexing and pattern. ओके, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कैसे टोकन जनरेट होता है, ये सारी चीजें. अभी फिलहाल के लिए समझो कि लेक्सिकल एनालिसिस क्या करता है. इट रीड्स द सोर्स प्रोग्राम, ओके, एंड ब्रेक्स द सोर्स प्रोग्राम इनटू द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर which represent a unit of information. That particular sequence of information must have some type of information.
whether these sequence of character belongs to operator, these sequence of character belongs to keywords or identifier and so on. ठीक, so this is called token. What is lexeme? Lexeme is also a sequence of character that are included in the source program according to the matching pattern of a token. ठीक है, it is nothing but an instance of a token. मतलब क्या है, जैसे हमने क्या कहा अभी आपको एक एग्जांपल बताया था कि आपने FOR के बजाय FO लिख दिया, I इज इक्वल टू 0, I लेस देन 20 लिखा। ठीक, तो होगा क्या कि जब रीड किया जाएगा प्रोग्राम, ठीक है, तो FO भी रीड कर लिया जाएगा। तो जितने भी सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स रीड किए जाते हैं, ठीक, वो सारे के सारे क्या होते हैं, लेक्सीम होते हैं। ठीक, ध्यान रखना, all the sequence of character generated by lexical analysis all are lexeme। ठीक, लेकिन लेक्सीम और टोकन में डिफरेंस क्या रह गया? अब इन सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स को अगर आप एक प्री डिफाइंड पैटर्न से पास कराते हो, ठीक, और अगर वो पास हो जाता है देन इट इज ए टोकन, इट बिकम्स टोकन। अदरवाइज ये क्या होगा, लेक्सीम तो रहेगा लेकिन वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड टोकन होगा। मतलब उसको टोकन की कैटेगरी में हम लोग नहीं रखते। क्लियर है? वो लेक्सीम तो रहेगा। तो जितने भी पूरा प्रोग्राम को आपने क्या किया, जैसे हमने लिखा इंट a, b, c सेमीकोलन, ठीक है, तो यहाँ पे इंट लेक्सीम है, a भी लेक्सीम है, कॉमा भी लेक्सीम है, b भी लेक्सीम है, ठीक, c भी लेक्सीम। ठीक, तो पूरे प्रोग्राम को जितने सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स बनते हैं ऑल आर लेक्सीम। ठीक, बट इफ इट डज नॉट मैच विद द पैटर्न। पैटर्न क्या होता है कि जब आप एक प्रोग्राम, एक कंपाइलर क्या करते हो, इफ यू आर गोइंग टू डिजाइन ए कंपाइलर you must have described the pattern, means which type of patterns you want to put into the compiler. So basically there are keywords, basically you have to put variables, basically you have to put operator, you have to put numbers, number होगा ही होगा, कीवर्ड होगा ही होगा, ऑपरेटर होगा ही होगा, पंक्चुएशन होगा ही होगा, और स्ट्रिंग्स होंगे भी। ठीक, क्लियर है? इसके अलावा बहुत सारे, जैसे जावा में कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कंपाइलर में क्या करना चाहते हो, उसके हिसाब से आप क्या करोगे, पैटर्न्स डिफाइन करोगे। तो अगर वो लेक्सीम फॉर ए पर्टिकुलर पैटर्न से पास हो जाता है तो वो टोकन बन जाता है। ठीक, क्लियर है? तो एक प्रोग्राम को अगर जितने सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर में डिवाइड करोगे, ऑल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स आर लेक्सीम बट ऑल लेक्सीम्स आर नॉट टोकन। ठीक, इफ ऑल लेक्सीम पास थ्रू ए pattern, it will be a token. Okay, otherwise it will simply a lexeme. A pattern is a description which is used by token. ठीक है, तो क्या होगा पैटर्न? तो सबसे पहले क्या होगा अगर देखा जाए, तो फर्स्टली यू विल गेट source program, then it is converted into lexeme, then these lexeme pass through a pattern. After passing the pattern, if it is passed successfully, it will become token. क्लियर है? अब देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा है सी का, इंट a इक्वल टू 100। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, इंट a इक्वल और 100। ठीक, ये सारे के सारे क्या है, लेक्सीम। देखो है क्या कि जैसे सी के कंपाइलर होते हैं कुछ, देखो सी में भी बहुत सारे कंपाइलर हैं। ठीक है, कौन कौन से कंपाइलर हैं, एनसीसी है, टर्बो सी है, बोरलैंड सी है, एंड लॉट ऑफ सी आर देयर। तो इट डिपेंड्स अपॉन, तो कुछ कंपाइलर क्या करते हैं, सेमी कॉलन को एज अ टोकन रखते हैं और बहुत क्या है नहीं रखते। ठीक, क्लियर है? तो है क्या कि यहाँ पे क्या है कि सेमी कॉलन क्या है, लेक्सीम। अब देखो है क्या कि ये लेक्सीम तो बना, ठीक है, लेकिन इसको कंसिडर नहीं करते। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन के वाइज से देखा जाए, ठीक, वैसे देखा जाए तो सेमी कॉलन भी एक लेक्सीम होगा। ठीक, लेकिन अगर हम क्या करें, इसको क्वेश्चन के उससे देखें, तो बिकॉज सेमी कॉलन इज नॉट पार्ट ऑफ द ट्रांसलेटिंग कोड, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल लेक्सीम रखेंगे। अगर देखा जाए तो सेमीकोलन भी रखना चाहिए। ठीक, क्लियर है? और टोकन क्या बना, इंट एक लेक्सीम है लेकिन वो टोकन क्या हुआ, कीवर्ड। ए क्या है, लेक्सीम है बट टोकन क्या है, आइडेंटिफायर। इक्वल क्या है, इट्स ए लेक्सीम बट इट इज एन ऑपरेटर। 100 इज ए लेक्सीम बट कांस्टेंट।
ओके, अगर हम सेमीकोलन को भी एज ए लेक्सिम ले लेते हैं, ठीक, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? पंक्चुएशन। ठीक, क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो क्या है, पैटर्न क्या क्या है। लेक्सिम समझ में आ गई, इंट हो गया, ए हो गया, इक्वल हो गया, 100 हो गया, ये क्या हो गया हमारा लेक्सिम। क्लियर? टोकन क्या हो गया? उस लेक्सिम को पैटर्न से पास करा। तो हमने कौन कौन से पैटर्न है हमारे? कीवर्ड पैटर्न है, आइडेंटिफायर है, ऑपरेटर है और कांस्टेंट है। ठीक, क्लियर है? पंक्चुएशन है, स्ट्रिंग है, ऑल दीज आर पैटर्न। ओके, अब आते हैं टोकन इन डिटेल। तो हमने आपको बताया कि टोकन इज नथिंग बट ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। व्हेन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर हो गया। ठीक, कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द रूल्स एज ए सिंबल। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर हैविंग सम रूल, या यू यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं पैटर्न, तो वो क्या बन जाता है हमारा टोकन। ठीक, फॉर एग्जांपल आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, कीवर्ड, ऑपरेटर, पंक्चुएशन, all these are token. Okay, now जो the process of forming tokens is called tokenization and that is done by tokenizer. ठीक, तो what अगर एग्जाम में आता है what do you mean by tokenization, तो tokenization means it is a process of forming token or generating token is called tokenization. तो एक लेक्सिम है, लेक्सिम को टोकन बनाने की जो प्रक्रिया है, जो एक्टिविटी है, दैट इज कॉल्ड टोकनाइजेशन। ओके, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? ये हर एक टोकन जो होता है वो पेयर में डिफाइंड किया जाता है। ठीक, क्लियर है? या पेयर में ही पार्सर को सेंड किया जाता है। जब एक लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को रीड करता है, प्रोग्राम को रीड करता है, टोकन बनाता है, ठीक है, तो इट रिटर्न्स इनटू द पेयर। तो वेयर ये किस फॉर्म में होता है? नेम कॉमा लेक्सिम वैल्यू। अब देखना यहाँ पे नेम क्या है, नेम होता है हमारा पैटर्न। ठीक, क्लियर है? बात समझ में आ गई? और लेक्सिम वैल्यू क्या होती है? उसकी वैल्यू। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं, नोट कर लेना तुम लोग। जैसे हमने लिखा, जितने कीवर्ड होते हैं, ठीक, वो क्या होते हैं? इंडिविजुअली डिफाइंड होते हैं। एक एक कीवर्ड इंडिविजुअली डिफाइंड होते हैं। ठीक, तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई लेक्सिम वैल्यू नहीं होती, वो नल भेजे जाते हैं। ठीक, जैसे अगर हमने क्या किया, आई एन टी इज ए कीवर्ड, तो यहाँ पे सिंपल क्या होगा, पेयर में आई एन टी कॉमा लेक्सिम वैल्यू नल और भेज दिया जाएगा। फिर फॉर के लिए पेयर में फॉर कॉमा नल भेज दिया, इफ कॉमा नल भेज दिया गया। तो जितने भी कीवर्ड है वाइड भेज दिया गया, जितने कीवर्ड्स हैं वो क्या होंगे? इंडिविजुअली डिफाइन होते हैं, उनकी लेक्सिम वैल्यू नहीं होती। ठीक, क्लियर है? तो वो क्या होते हैं? सिंपल जो कीवर्ड होते हैं वो अपने नाम के साथ भेज दिए जाते हैं। इसके अलावा, कीवर्ड्स के अलावा बाकी सारी चीजें होती हैं जो डिफाइंड नहीं होती। डिफाइंड होती हैं लेकिन क्या है, ये प्रोग्रामर के हिसाब से डिफाइंड होती है। ठीक, क्लियर है? जैसे हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी इंटू सी लिखा, ए प्लस बी इंटू सी। अब यहाँ पे क्या है, ए बी सी, ये क्या है? दो आइडेंटिफायर है। ठीक, क्लियर है? ए बी सी क्या है? दो आइडेंटिफायर है, तीन आइडेंटिफायर है। और अब देखो क्या है, इनके नेम क्या हो गए? ऑल आर आइडेंटिफायर। ठीक, तो हम यहाँ पे नेम पे ए नहीं भेजेंगे, हम लोग क्या भेजेंगे? नेम पे आइडेंटिफायर भेजेंगे, मतलब आईडी। ठीक, कॉमा। अब इसकी लेक्सिम वैल्यू क्या है? लेक्सिम वैल्यू क्या हो जाएगी कि जैसे जैसे आइडेंटिफायर आते जाते हैं उनकी हम वैल्यू नोट करते जाते हैं। जैसे आइडेंटिफायर पहले, सबसे पहले ए आया तो ए की वैल्यू 1 कर दिया, बी आया फिर 2 हो गया, सी आया 3 हो गया, देन डी आया तो 4 हो गया, 5 एंड सो ऑन। तो हम लोग क्या करेंगे कि हर एक आइडेंटिफायर के लेक्सिम वैल्यू डिफाइन कर देंगे। तो वो अब क्या होगा, हम जब पार्सर को भेजेंगे ए का, ए एज ए टोकन, तो क्या होगा? सिंपल पेयर में जाएगा, नेम क्या हो जाएगा? आईडी आइडेंटिफायर कॉमा 1। ए को लेक्सिम वैल्यू हमने 1 माना, तो ए कॉमा 1। ओके, फॉर बी इट विल बी बी कॉमा 2, फॉर सी सी कॉमा 3 एंड सो ऑन। अब देखो क्या है, ऑपरेटर। तो ऑल ऑपरेटर हैव सेम नेम ऑपरेटर। क्लियर?
बट उसकी लेक्सिम वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक, अब जैसे सबसे पहले a प्लस बी इंटू सी है, तो सबसे पहले प्लस आया, तो हमने क्या डिफाइन कर दिया, प्लस को 1 कर दिया। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो भी रखना चाहते हो, ठीक है, कोई भी वैल्यू रखना चाहते हो, इट इज इंटीजर वैल्यू। ठीक, क्लियर है। तो हमने प्लस को 1 मान लिया, मल्टीप्लीकेशन को 2 मान लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, नेम क्या हो जाएगा, ऑपरेटर कॉमा 1, ऑपरेटर कॉमा 2, ऑपरेटर कॉमा 3 एंड सो ऑन फॉर ईच इंडिविजुअल ऑपरेटर। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो अकॉर्डिंग टू दैट the token is defined into two kinds. Okay, there are two kind of token. First one is specific token and second one is class token. Specific token have already defined just like keywords, हमने आपको बताया। और इसमें क्या होता है, LA lexical analyzer just specify their type not value। ठीक है, उसका टाइप भेज देता है, उसकी वैल्यू नहीं भेजता है। क्लियर है। तो जितने कीवर्ड हैं वो उनके इंडिविजुअली टाइप्ड डिफाइन है। इंट एक टाइप बन गया, फॉर एक टाइप है, इफ एक टाइप है, व्हाइल एक टाइप है, ठीक, एंड सो ऑन। क्लियर। तो दीज आर कॉल्ड स्पेसिफिक टोकन। तो जो टोकन क्या है, ऑलरेडी डिफाइंड है और उनके करस्पॉन्डिंग देयर इज नो वैल्यू, इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक टोकन। क्लास टोकन, इट इज नॉट प्री डिफाइंड। ओके, ये क्या होते हैं, एलए लेक्सिकल है, जस्ट स्पेसिफाई देयर टाइप एज वेल एज देयर वैल्यू। ठीक, जैसे आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, पंक्चुएशन एंड सो ऑन, ऑल आर डिफाइंड विद ए नेम, विद ए टाइप एंड ईच मस्ट हैव वैल्यू। नाउ कम टू द इनपुट बफरिंग टेक्निक। तो इनपुट बफरिंग क्या होता है, टोकन, इट इज यूज फॉर जनरेटिंग द टोकन। ओके, अब देखो क्या है कि अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि हवा में बताए जा रहे हैं कि टोकन बन रहा है, लेक्सिम बन रहा है, लेकिन बनता कैसे है। ठीक, कैसे बनता है, इनपुट बफरिंग टेक्निक। तो होता क्या है कि एक हम लोग क्या करते हैं, वी पुट और वी एलोकेट ए स्टोरेज इन रैम। तो आपको मालूम है कि जितने भी क्या होते हैं डायनामिक एक्टिविटीज होती हैं रन टाइम पे, वो कहाँ पे होती है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। तो इसमें भी क्या होगा, जब लेक्सिकल एनालिसिस स्टार्ट होगा तो वैसे ही क्या होगा, फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम ए मेमोरी स्पेस इज एलोकेटेड, दैट इज कॉल्ड बफर, because that buffer takes input the source program, that's why it is called input buffer. तो इस बफर, ये बफर क्या करता है, इनपुट बफर एज ए इनपुट, सोर्स प्रोग्राम एज ए इनपुट लेता है। इसके दो पार्ट होते हैं बफर के। ठीक है, एक पार्ट में प्रोग्राम इंटर होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक, अब क्या होता है इसमें दो पॉइंटर होते हैं। देखो ये इनपुट बफर है, ठीक, एक एंड से मतलब राइट हैंड एंड से पूरा प्रोग्राम स्टोर होता जाता है। ठीक, दो पॉइंटर होते हैं, एक बिगिनिंग पॉइंटर और एक क्या होता है, लुक अहेड पॉइंटर। तो एज नेम सजेस्ट, लुक अहेड पॉइंटर मींस that look ahead pointer points to the next symbol. Okay, and beginning of the token pointer या token beginning pointer is a static pointer. ठीक है, तो जैसे पहला प्रोग्राम आया, जैसे int है, यहाँ पे a इक्वल टू b प्लस सी है, तो पहला कहाँ पे आ जाएगा, a पे आ जाएगा पॉइंटर, और लुक अहेड पॉइंटर भी सेम। तो इनिशियल लेवल पे क्या होगा, बिगिनिंग पॉइंटर एंड लुक अहेड पॉइंटर आर इन सेम पोजीशन, बट लुक अहेड पॉइंटर मूव्स वन सिंबल एट ए टाइम। इट इज ए फॉरवर्ड पॉइंटर, मूव्स वन सिंबल एट ए टाइम। कब तक मूव करेगा, अंटिल इट गेट्स डेलीमीटर। ओके, डेलीमीटर जब मिलेगा मतलब क्या है कि जैसे हमें अल्फाबेट्स मिल रहे हैं, ठीक, क्लियर है, आई मिला, एंट मिला, टी मिला, ठीक है, तो वो रीड करता जाएगा। जैसे ही डेलीमीटर मिलेगा वहीं पे स्टॉप कर जाएगा। ठीक, तो अब होगा क्या कि बिगिनिंग पॉइंटर और लुक अहेड पॉइंटर के बीच में जितना भी मटेरियल होता है वो पूरा का पूरा नोट कर लिया जाता है, और वो क्या कहलाता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, या जिसे हम क्या कहते हैं, लेक्सिम कहलाता है। ठीक, क्लियर है। लेकिन अब देखो क्या है कि बिफोर गेटिंग द लेक्सिम हम लोग क्या करते हैं, एक रिट्रैक्शन प्रोसेस करते हैं। कौन सा प्रोसेस करते हैं, रिट्रैक्शन प्रोसेस। ये रिट्रैक्शन प्रोसेस क्या होता है कि एज लेक्सिम
एज लुक अहेड पॉइंटर मूव्स वन एक्स्ट्रा एलिमेंट, जैसे हमने लिखा इंट INT स्पेस कॉमा ए, तो आई मिला, एन मिला, टी मिला, लुक सेट पॉइंटर मूव करता रहता है। जैसे ही क्या होगा उसे स्पेस मिला, तो इट मीन्स फॉर INT इट इज डेलीमीटर। ठीक, वहीं पे लुक अहेड पॉइंटर स्टॉप हो जाएगा। तो हमने क्या कहा कि टोकन बिगिनिंग और लुक अहेड के बीच में जितना मटेरियल है इंक्लूडिंग दिस पॉइंटर, तो इसमें क्या होगा, स्पेस भी ऐड हो गया। जैसे हमने कहा ए कॉमा, ठीक, तो ए क्या है, हमारा आइडेंटिफायर है, ए है, उसके बाद कॉमा आया तो इसका मतलब कुछ अलग रिप्रेजेंटेशन है, तो कॉमा इज डेलीमीटर फॉर ए। तो वहीं पे क्या होगा, ए पे टोकन बिगिनिंग है, कॉमा पे क्या है हमारा लुक अहेड है। तो लुक अहेड अब क्या होगा, लेक्जिम जब बनाएंगे तो क्या होगा कि ए के साथ कॉमा भी आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि वन स्टेप बैक कर जाते हैं। ठीक, क्लियर है, वन स्टेप बैक कर जाते हैं लुक एट पॉइंटर, मतलब जैसे हम क्या है, डेलीमीटर होता क्या है? हाँ, फिर डेलीमीटर होता क्या है एक्चुअली? डेलीमीटर, डेलीमीटर हम बता रहे हैं, जैसे हमारे क्या है कि एक सीक्वेंस हमें मिल रहा है, उस सीक्वेंस के अलावा अगर कोई चीज मिल जाती है तो क्या होगा, हमारा डेलीमीटर होगा। जैसे फॉर कीवर्ड, कीवर्ड है तो जितने कीवर्ड होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, इंग्लिश अल्फाबेट आते हैं, INT FOR ये सारी चीजें। आइडेंटिफायर क्या होगा, वो क्या होगा, क्या होगा, कैरेक्टर होंगे, अल्फाबेट होंगे। ठीक, क्लियर है, लेकिन वो डिफाइंड नहीं होंगे। ठीक है, आप A1 भी एज ए क्या ले सकते हो, वेरिएबल ले सकते हो, B1 भी ले सकते हो। तो A1, तो आइडेंटिफायर के केस में क्या होगा, ए आया उसके बाद अगर नंबर आया, ठीक, तब तो ठीक है, लेकिन अगर ए के बाद नंबर डिजिट के अलावा अगर कोई भी चीज आती है, कॉमा आता है, स्पेस आता है, वट एवर, तो फॉर ए वो क्या हो जाएगा, डेलीमीटर हो जाएगा। जैसे हमारे पास ऑपरेटर आया, तो A+B, ऑपरेटर के बाद ऑपरेटर आ सकता है, ठीक, क्लियर है, लेकिन ऑपरेटर के बाद अगर कोई अल्फाबेट्स आ रहा है तो वो क्या होगा, फॉर दैट पर्टिकुलर ऑपरेटर इट विल बी डेलीमीटर। तो आप समझ गए ना डेलीमीटर। तो डेलीमीटर क्या होता है, एक तरीके से स्टॉपिंग वर्ड्स होते हैं। ठीक, जो एक पैटर्न के अलावा कोई चीज मिलता है देन वो क्या होता है, हमारा डेलीमीटर कहलाता है। क्लियर है। तो तो सर एक काइंड का एरर हो गया ना वो फिर? अच्छा रुको, ये सारी चीजें 9:45 मतलब जो अभी क्लास ओवर हो जाएगी इसके बाद फिर से लॉग इन करना। जितने लोगों को प्रॉब्लम है, कोई चीज पूछनी है, वो अभी क्या होगा, मैं फिर से जब ये टाइम खत्म हो जाएगा लॉग इन कर दूंगा, जिससे फिर से हम लोग डिस्कस कर लेंगे प्रॉब्लम को। ठीक है, अभी मैं ये बता देता हूँ। तो कोई भी एक डेलीमीटर मिला वहां पर, तो वो डेलीमीटर भी इंक्लूड हो जाता है उस लेक्सिम में। तो उस लेक्सिम को हटाने के लिए रिट्रैक्शन करते हैं, मतलब जैसे क्या हुआ, हमारा लुक एट पॉइंटर n पॉइंट्स तक मूव किया तो हम n-1 काउंट करते हैं। ठीक, तो जैसे यहाँ पे C के बाद हमारा लुक एट पॉइंटर है तो ये स्पेस भी काउंट हो गया, व्हाइट स्पेस। तो हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे सिर्फ C को, यानी कि लुक एट बिगिनिंग पॉइंटर यहाँ पे है और लुक एट पॉइंटर को एक माइनस कर देंगे। आप लोग अटेंडेंस देते रहिएगा साथ में, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इनपुट बफरिंग टेक्निक। तो होगा कि जो लेक्सिम एक एक हाफ में बिगिनिंग पॉइंटर लुक एट पॉइंटर होता है, दूसरे हाफ में क्या होगा, जो लेक्सिम बनते जाएंगे वो दूसरे हाफ में 1 बाय 1 डालते जाएंगे। ठीक, उसके बाद पैटर्न से पास कराएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ हमने, अच्छा, जो हमारे टोकन्स नहीं बनते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, नॉन टोकन। ठीक, जैसे जितने भी प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव होते हैं, जैसे हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन, ये सारी चीजें जो होती हैं वो क्या होती हैं हमारे, ठीक है, ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं वो क्या होती है, हमारी नॉन टोकन्स होते हैं। ठीक, तो जितने कमेंट्स हो गए, जितने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं, जितने वाइट स्पेसेस मतलब ब्लैंक स्लैश एंड BT, ये जितने भी, ठीक है, लेक्सिम तो बने, लेक्सिम बने लेकिन वो पैटर्न से नहीं पास हुए, ठीक, और वो एरर नहीं है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे नॉन टोकन। ठीक, क्लियर है। अब जैसे ये कुछ एग्जांपल हमने लिखा है यहाँ पे, इंट मेन, उसके बाद कमेंट लिखा मैंने, टू वेरिएबल्स इंट A कॉमा B सेमीकोलन A इज इक्वल टू 10 रिटर्न 0। यहाँ पे हमने सेमीकोलन को एज ए टोकन कंसीडर किया है। तो लेक्सिम क्या क्या हो जाएंगे, इंट मेन ओपनिंग ब्रेसेस क्लोजिंग ब्रेसेस करली ब्रेसेस, इसके बाद INT A कॉमा B सेमीकोलन A इक्वल 10 सेमीकोलन रिटर्न 0 सेमीकोलन एंड क्लोजिंग ब्रेसेस, ऑल आर क्या हो जाएंगे, लेक्सिम। ठीक, अब इसको अगर हम
किससे पास कराएं? लेक्सिम को टोकन से। ठीक, तो हमारा टोकन क्या बनेगा? इंटीजर एज ए कीवर्ड मेन। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, मेन जो फंक्शन, जितने भी फंक्शन यूज करते हैं वो कीवर्ड नहीं होते हैं। ठीक, प्रिंटफ, स्कैनफ, गेटch, मेन, ठीक, ये कीवर्ड नहीं है, ये प्री डिफाइंड तो है लेकिन कीवर्ड नहीं है। दे कम इनटू द कैटेगरी ऑफ आइडेंटिफायर। तो ये ध्यान रखना, ये सब क्या होते हैं? आइडेंटिफायर होते हैं। ठीक, तो प्रिंटफ, स्कैनफ ये सब आइडेंटिफायर होते हैं। ठीक, तो ये ब्रेसेस जो हुआ, ओपनिंग ब्रेसेस, ये क्या हुआ? पंक्चुएशन। ठीक, टोकन। उसके बाद ए बी, ये जितने हो गए, मेन हो गया, ये सब क्या हो गया? आइडेंटिफायर। रिटर्न हमारा क्या हो गया? कीवर्ड। ठीक, तो ये हमारे क्या हो गए? टोकन्स हो गए। अब जैसे एक एग्जांपल लिखा मैंने, INTFOR। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है कि जब इसको स्कैन किया जाएगा तो इनपुट बफर में INT और FOR दोनों लेक्सिम बन जाएंगे। ठीक, लेक्सिम बन जाएंगे। क्लियर है? लेकिन अब देखो क्या है कि अगर देखा जाए तो FOR यहाँ पे ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे एज ए आइडेंटिफायर यूज किया गया है। लेकिन क्या होगा जब इसको प्री डिफाइंड वर्ड से मैच किया जाएगा तो ये मैच हो जाएगा। ठीक, और ये क्या करेगा? एक एरर जनरेट करेगा। तो हम कीवर्ड्स को क्या कर सकते हैं? कभी भी एज ए आइडेंटिफायर ट्रीट नहीं करेंगे। इंट इफ नहीं ले सकते, इंट फॉर नहीं ले सकते, इंट या फ्लोट, ये क्या कहते हैं, एल्स वगैरह नहीं ले सकते। ठीक, क्लियर है? तो वो क्या हो जाएगा? हमारा एरर हो जाएगा। इंट ए बी ले सकते हैं, ठीक, इंट ABC ले सकते हैं, इंट A1 ले सकते हैं, ये आइडेंटिफायर होगा। तो ये वाले केस में क्या होगा हमारा? ठीक है, एरर शो करेगा। अच्छा, कोई भी क्वेरी हो, मैं अभी जस्ट फिर लॉग इन हो जाऊंगा, जितने भी क्वेरी है मैं वन बाय वन सबके एक एक क्वेरी सॉल्व करूंगा। तो जिसको कोई प्रॉब्लम है वो फिर से लॉग इन कर लेगा और मैं सारी प्रॉब्लम उनकी सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो ये अभी टाइम आउट हो जाएगा। तो अभी मैं